Hello, greetings of the day, students. So, I gather again for further discussion of Introduction to Programming chapter. Actually, this is not a second chapter. Course-wise, it is your first chapter only. But for the ease of understanding, I have divided the introduction chapter into two parts: Introduction of Computer or General Introduction, and Introduction of Programming. So, we are beginning with our second part of the first chapter, Introduction to Programming, right? So there are programming languages, and programming languages have so many kind of categories. But based on their interaction with hardware or machine, programming languages have three types: machine level, assembly level, and higher level. As you can see on the screen, right? It has three parts. Sorry, three categories: machine level language, assembly level language, and higher level language. For sake of simplicity, I am declaring that what we are doing programming in हम C में प्रोग्राम करते हैं. So अभी की लैंग्वेज के कंपैरिजन में C is a bit lower level language, but when the programming was very new and when the book was written properly, then C was really a great language, and C was the only available language that has the highest level of interaction with the machine, right? So it was called higher language back then, but right now it is middle level language or lower level language. So as we grow older, the C will be, considered very lower level language. So level of the languages will be going very high. So right now I'm talking about level of languages. So what is level of languages? We'll see after a bit in a detail, right? So first of all, let's see how schematic representation look like. So here is the hardware, then we have machine level language, then we have assembly level language, and then obviously we have higher level language. So these are the three representations or categories of the programming languages based on their interaction with hardware. So machine level is the closest to the hardware. Programs written in machine level are very understandable by the hardware, so it is called lower level language, right? So level low, medium, and high represents its distance from hardware, how much you have to convert that language to make it understandable by the hardware. Machine level is a very lower level language. I mean, whatever the machine level languages are, they are very lower level languages, and they are very close to the hardware. As you can see, hardware can directly execute the machine level languages. And then we have assembly level languages. Assembly level languages are a bit higher than machine level language. They are a bit more far from hardware, so they are also called middle level languages. And then finally we have the higher level languages. And higher level languages have to be converted twice before hardware can execute it. See, higher level languages have to be converted to assembly level language, and then it have to be converted to machine level language. Then only compiler can execute it, right? So yes, before this lecture we saw the execution of C program, and there was something called assembler in that program, if you in that slide, if you guys remember. So assembler is the program that helps convert higher level languages into assembly level, and then it has a linker or loader that connects assembly level language, converts assembly level language into machine level language. Machine level language is basically zeros and ones, right? So these are some examples of higher level languages. Right now machine assembly level languages and machine level language program rarely happens, so nobody codes in machine language. Why? Because it's hard. We'll see it in a while. So as it is written here, higher language is easy to programmers, contain general English words, right? So and lower language is computer's own language, like that's zeros and ones, binary numbers. Yes. Okay. So still we have OO and visual language. Object oriented and visual languages are more higher than Fortran, C and Pascal, because they have to be converted more than twice, like thrice. 1, 2 and 3 and 4. Okay, so this is the conversion rate. As we go higher and higher, so it will increase its distance from hardware, and it will need more conversion to be understood by hardware. So this is all about its levels. So which level is which language is higher level or lower level based on its interaction with hardware. So let's see quickly what machine level programming is.
It is done using binary codes, right? Binary codes में होती है zeros and ones में. Let's say if you have to add something, so its instruction is this. Obviously we won't understand this because we don't know machine level language, but what we have to understand here, it is that it is closer to the hardware, right? And these codes are not portable. सब मशीन के कोड्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि IBM ने कोई मशीन बनाया, एप्पल ने कोई मशीन बनाया, विंडोज़ ने कोई मशीन बनाया, सबके मशीन लेवल कोड्स अलग अलग होते हैं. ये जो मशीन लेवल कोड है वो प्रॉब्ली MS DOS का है, ये जो IBM यूज़ करती थी एट दैट टाइम. सो फाइन. एंड ऑब्वियसली जस्ट एडिशन की इंस्ट्रक्शन इतनी लंबी और हार्ड है जिसको याद रखने में इतना टाइम लग रहा है. तो सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, मेमोरी स्टोरिंग है, मेमोरी रिमूविंग है, रिट्रीवल है, ये सारी 200 to 300 अराउंड इंस्ट्रक्शंस याद रखने में ऑब्वियसली किसी भी प्रोग्रामर को प्रॉब्लम हो सकता है. सो एट दैट टाइम there were good books that you can refer, and then you can see the code or machine codes in, right? But बहुत ही tedious task था और unnecessary task था कि जो time consuming था machine level codes याद रखना, right? So slowly we moved on to assembly language programming. फाइन. सो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में क्या होता था, शॉर्ट निमोनिक्स होते थे. जैसे कि प्रीवियसली हमने देखा कि ये ऐड इंस्ट्रक्शन है, तो ये ऐड इंस्ट्रक्शन की जगह पे निमोनिक्स में वो लिखते थे ADD, ऐड समथिंग. सो जे जस्ट यूज टू राइट डाउन ऐड, उसको कहते हैं निमोनिक्स. निमोनिक्स यानी short names basically, right? If somebody has a big name, let's say what do we say, Divya Raj, or so we just call him Raj or Divya, or we call him Dev. Somebody's name is Devendra, we call him Dev, right? So it's similar to that. So mnemonics सबने याद रखने चालू कर दिए, तब से उसको असेंबली लेवल किया गया. असेंबली लेवल कोडिंग कहाँ यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर्स में यूज होता है, OS में यूज होता है, बहुत पुराने वाले. सो ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गया हमारा, हमें पहले जो बड़े बड़े कोड्स याद रखने पड़ते थे, एडिशन का कोड ये है, सब्ट्रैक्शन का कोड ये है, उससे हमें छुट्टी मिल गई और हमें बाइनरी कोड्स याद नहीं रखने पड़ते हैं. ओके. सो नाउ अगेन एज वी डिस्कस अर्लियर, उसको कन्वर्ट कौन करता है, असेंबलर करता है. असेंबली लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर चाहिए होता है, जो उसको निमोनिक्स यानी बाइनरी कोड्स को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में. ऑब्वियसली एग्जीक्यूट क्या होगा आफ्टर ऑल, मशीन कोड होगा. यहाँ पे जैसे हमने देखा डायग्राम में, कोई भी हायर लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लेवल लैंग्वेज है या मशीन लेवल है, आफ्टर ऑल उसको किस लेवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मशीन लेवल में, क्योंकि हार्डवेयर समझता क्या है, सिर्फ मशीन लेवल. ओके. सो एनीथिंग हैज़ टू बी कन्वर्टेड टू मशीन लेवल. सो यहाँ पे असेंबलर को हमने मशीन लेवल लैंग्वेज से एक लेवल ऊपर आ गए, दैट इज असेंबलर. तो असेंबलर को भी ऑब्वियसली ऐसा कुछ कन्वर्टर चाहिए होगा कि जो वो ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसे इंस्ट्रक्शन जो हम वर्ड्स में लिखते हैं उसको वापस अगेन कोड्स में कन्वर्ट कर सके, 0101 वाले, राइट? ये फ्रैक्शनली स्लोअर है. फ्रैक्शनली स्लोअर क्यों है, ऑब्वियसली पहले कोड्स थे जिसको किसी में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता था और डायरेक्टली हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते थे. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम उसके शॉर्ट निमोनिक्स यानी कि शॉर्ट नेम्स यूज़ करते हैं जिसको असेंबलर नाम के सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन कोड में, और बाद में हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. यानी कि चीज़ें फ्रैक्शनली थोड़ी स्लोअर हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना पड़ता है. और इसके जनरल ड्रॉबैक्स हैं जो भी ऑब्वियसली हम डिस्कस कर ही लिए होंगे, कि हमें ऑब्वियसली क्या चाहिए कि डिटेल लेवल ऑफ प्रोसेसर नॉलेज चाहिए. माइक्रो प्रोसेसर का हमें डिटेल नॉलेज चाहिए, उसके कोड्स क्या हैं, उसके इंस्ट्रक्शन क्या हैं, 200 to 300 इंस्ट्रक्शन है, उसके बाइनरी कोड्स ऑब्वियसली याद रखना बहुत हार्ड है. ओके. उसका आर्किटेक्चर याद होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है. सो अगर कोई प्रोग्रामर है जिसने IBM के MS DOS में प्रोग्रामिंग किया है, किसी ने विंडोज़ में प्रोग्रामिंग किया है, किसी ने मैक में प्रोग्रामिंग किया है, तो उसके इंस्ट्रक्शन सबके अलग अलग होते हैं. सो सेम प्रोग्राम 3 कंप्यूटर में चलाने के लिए 3 लोग चाहिए, विच इज़ रियली बैड. ओके. सो बहुत कंफ्यूजन होता था, कॉम्प्लिकेशन होता था, एंड देयर वर वेरी स्मॉल ऑपरेशंस एज इंस्ट्रक्शन. ऑपरेशंस बहुत स्मॉल थे, जैसे कि मुझे एवरेज फाइंड करनी है तो एवरेज का कोई ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शन नहीं था. उसके लिए आपको सपोज 3 नंबर की एवरेज फाइंड करनी है, उसके लिए आपको 2 बार एडिशन अप्लाई करना पड़ेगा, A1 प्लस A2. और A1 प्लस A2 का जो आंसर है उसका A3 के साथ एडिशन, और देन एट लास्ट डिविजन. A1 प्लस A2 प्लस A3 का रिजल्ट मेरे पास है ऑलरेडी, उसको मैं डिवाइड करूँगा 3 से. ऐसे करके हम लोग एवरेज फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दोज इंस्ट्रक्शन. सो विच वॉज रियली हार्ड, दे आर वेरी स्मॉल यूजफुल इंस्ट्रक्शन, right? And using them takes quite long to develop a piece of software.
या ऑब्वियसली हमें अगर एवरेज का प्रोग्राम फाइंड करने में इतनी सब मशक्क़त करनी पड़ रही है तो बड़े बड़े प्रोग्राम्स के लिए बहुत टाइम लगता था। सिमिलरली अगर आप एवरेज का प्रोग्राम जावा या पाइथन में लिखते हैं तो आपको सिर्फ एवरेज नाम का फंक्शन यूज़ करना है जो ऑलरेडी अवेलेबल है और बिल्ट इन है, so you can easily find the average of the program. So now why did we need higher level language programming? So because of these drawbacks that we just discussed, and higher level languages हायर लेवल क्यों है, क्योंकि वो कंपाइलर से दूर है, बट वो क्या करती हैं, ऐसे फ्रेज यूज़ करती हैं जो हम जनरल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इफ समथिंग हैपन्स देन डू समथिंग, सो दे विल एल्स डू समथिंग एल्स. So similarly it has if and else blocks. Then we have integer, floats. If you have already studied in your C lab, you already know what are integers and what are floating point numbers. ये बहुत ही जनरल वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं, जो हम जनरली यूज़ करते हैं, राइट. वो नेचुरल लेवल लैंग्वेज के क्लोज है, नेचुरल लैंग्वेज के. इट इज़ रियली ईजी टू अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही ईजी है, हम आराम से समझ सकते हैं उसको, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, राइट. एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट इज सिंपल एंड फास्टर. सी हम एग्जीक्यूशन से मतलब नहीं है, प्रोग्राम डेवलपमेंट फास्टर हो गया है. पहले जो एवरेज का प्रोग्राम लिखने में हमें बहुत टाइम लगता था, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी पड़ती थी, उसकी जगह पे एक या दो इंस्ट्रक्शन में हमारा काम हो जाता है जो इनबिल्ट है. पर अगेन एग्जीक्यूशन थोड़ा क्या हो जाएगा, और भी स्लोअर देन मशीन लेवल एंड असेंबली लेवल, बिकॉज इसको दो बार कन्वर्ट करना पड़ेगा. पहले हमें इसको हायर लेवल लैंग्वेज इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मशीन लेवल असेंबली लेवल लैंग्वेज में, और असेंबली लेवल को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, machine level language में. Then machine level language will be able to execute by the compiler. So execution is a bit slower. See, development is faster, execution is a bit slower. So we could deal with that. Execution के साथ हम क्यों डील कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसर बहुत फास्ट हो गए हैं पहले से. So execution के साथ डील करना इट्स वेरी इजी, पर हमारा डेवलपमेंट फास्ट हो गया है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, राइट. बेसिक, कॉलबॉल, फॉर्टन. ये बेसिक, कॉलबॉल, फॉर्टन और सी, ये चार लैंग्वेज ऐसी हैं जो पहले हायर लेवल में गिनी जाती थी, पर अब मीडियम या लोअर लेवल में गिनी जाती है, राइट. बट वी हैव टू फॉलो द कन्वेंशन ऑफ वर्बो, सो विल से सी इज हायर लेवल लैंग्वेज. सो कैसे प्रोग्राम दिखते हैं, हायर लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम कुछ ऐसे होते हैं. सी, क्लास ट्राइंगल, float surface, return something. So there is a class called triangle. Triangle class में एक float surface नाम का फंक्शन है जो उसका ट्राइंगल का सरफेस का बाउंड्री निकाल रहा है, राइट. और वो कुछ रिटर्न कर रहा है हमें b इंटू एच बाई टू, और उसका सरफेस एरिया निकाल रहा है, राइट. और हमें रिटर्न कर रहा है b इंटू एच बाई टू, बेस इंटू हाइट बाई टू. सो ये मैथमेटिकल निमोनिक्स है, मैथमेटिकल चीज़ें हैं जो इजीली नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू समझ सकते हैं. सो हायर लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इज रियली इजी टू अंडरस्टैंड. उसको अगर हम असेंबली लेवल में लिखे जाए तो हम उसको असेंबली लेवल में कैसे लिखेंगे, पहले b को लोड करेंगे, फिर h की वैल्यू लोड करेंगे, देन वी मल्टीप्लाई r1 एंड r2, दोनों r1 और r2 नाम की मेमोरी लोकेशंस में स्टोर्ड है, रजिस्टर्स में स्टोर्ड है, और हम उसको डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि b इंटू एच बाई टू इज द फॉर्मूला, और वो हम उसको रिटर्न करते हैं. सो ये दोनों सेम चीज़ है, ये अंडरस्टैंडेबल चीज़ है, ये थोड़ा लेस अंडरस्टैंडेबल चीज़ है, बट स्टिल if you are a good programmer, if you have known about assembly level languages, you can understand. But think about this, none of us can understand this unless and until you have designed this language. अगर आपने इसके मशीन कोड्स डिज़ाइन किए हैं तो ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी. अगेन प्रॉब्लम क्या है कि हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है असेंबली लेवल लैंग्वेज में, और असेंबली लेवल से हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में. इसके लिए है कंपाइलर, कंपाइलर इसको कन्वर्ट करता है असेंबली लेवल लैंग्वेज में, और इसके लिए है असेंबलर, असेंबलर असेंबली लेवल लैंग्वेज में किसमें कन्वर्ट करता है, बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करता है. ठीक है. सो हमने यहाँ तक डिस्कस किया तीन लेवल ऑफ लैंग्वेजेस, लोअर लेवल, असेंबली लेवल, सॉरी मशीन लेवल, असेंबली लेवल एंड हायर लेवल. उसको लोअर लेवल, मिडल लेवल और हायर लेवल भी कहते हैं. ठीक है, अदर नेम्स. सो क्विकली गो थ्रू दिस, ये इसके बारे में थोड़ा पढ़िए, खुद सर्च कीजिए. ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स क्लियर इट इन द प्रैक्टिकल सेशंस और इन comment section, right. So next what we are going to discuss is characteristics of higher level language or procedural or object oriented language. We will see what that is.
So click both of this. Have a good day.